Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Capricorn Ascendant and how the month of February is going to turn out for you. See, first of all, you are extremely hardworking people and you move toward your goal with a lot of determination. All of you should always aim for dialing down the negative effects of Saturn, and hence you should take a bath regularly, use perfume or wear new clothes from time to time because this helps in dialing up the positive effect of Venus, which is a very strong benefic planet for you. And you should never wear blue or black clothes because this dials up the negative energy of Saturn. You should also keep your surroundings very clean. We will first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord is combining in the second house with Venus, and this is a good time to excel in your profession till 14th of February. You will get a lot of accolades at the workplace, and the stars are favoring you at the workplace in the first half of this month. You will get opportunities to switch jobs, and you should do it before 14th of February, not after that. Venus is going to move to the third house after 14th of February, where it is going to get into a planetary war with Jupiter, and hence the rest of the month will become average for you. Movement of Ketu in the 10th house would mean detachment from the workplace. So you need to feed black dogs on every Wednesday in order to counter this malefic impact of Ketu in the 10th house. Saturn in the second house will now work to increase responsibilities in your family life, and it is going to provide you an opportunity to slowly accumulate a lot of wealth in the next 2.5 years. Sun is going to be in your first house in the month of February for the first 12 days, and this sun is going to boost your ego in a negative way. So you need to control your ego, otherwise this kind of situation creates issues. From 13th of February to 14th of March, this sun is going to move to the second house where it is going to combine with Saturn. And Saturn is the staunch enemy of Sun. This would mean tensions would arise on the family front. At the same time, people who work in the combination sectors of these two planets, that is those in pharmaceuticals, fashion industry, entertainment or even film industry, they will also face issues at the work front. So from 13th of February to 14th of March, the time will be slightly difficult for your ascendants, especially when it comes to dealing with the family issues that will arise during this time frame. Sixth house lord Mercury is also passing through the first house, which means that your enemies will try to upstage you during this month, and you also need to be cautious for your health in this month, especially between 7th to 9th of February. This is a positive time for speculation because the fifth house lord is going to get exalted in the third house in the second half of February, and again this third house is also 11th from 5th. So from both the criterias, whether it is the placement of the lord or the angle that it forms with its own house, both the things are favoring for a very good speculation month for you, especially from 14th of February to 28th of February. Time is going to be very favorable for you. Mars is going to stay in the fifth house, which means that kids are not going to listen to you. And if you are over disciplined, then they will revolt against your ways of working. Capricorn ascendant people usually have affluent kids because the sign of Venus is falling in the fifth house, and Taurus is the most rich ascendant that you will come across. And that is why your kids become financially very strong when they grow up. A lot of issues that you face also get resolved after your kids have reached a maturity age, and you have a good time with them only after they grow up. They are also able to reach a very good financial position because of the blessing of Venus on to you as well as on your kids. Now, there are also certain dates where you need to watch out for, and these dates in February are 2nd and 3rd of February, 7th and 8th of February, and 16th and 17th of February. Just be cautious during these 6 days. This is a pretty good month for you because the ascendant lord in the second house itself guarantees a good inflow of cash, and in this case, it is going to combine with Venus during the first 12 days. So it is certainly promising you money coming from the professional front because Venus is also the 10th house lord for you.
So if you get any kind of a job before 12th of February, take it up. Otherwise you will have to wait for some time, because once Venus moves into the third house, it is going to get locked into interplanetary war with Jupiter. So if you are also someone who works in the business of speculation, then also this month is very good for you, especially the later half from 14th of February to 28th of February. So that's the summary for you for this month. Please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मकर लग्न वालों के लिए फरवरी 2022 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, मकर लग्न के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। मकर लग्न और शनि के आने वाला दूसरा लग्न यानी कि कुंभ लग्न, ये दोनों ही लग्न में पैदा हुए लोगों का भाग्य ही होता है कि उन्हें कमर तोड़ के मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं होता है। और जितने भी हमारे 12 लग्न हैं उनमें मकर और कुंभ लग्न के लोगों का जीवन सबसे कठिन होता है। और मकर लग्न के लोगों के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से अपने जीवन में कई सारी मुसीबतों से पार पार जाते हैं, जो कि दूसरे लग्न के लोग शायद गिव अप कर देते हैं। ये अपने गोल्स की तरफ बहुत अच्छे खासी जिद के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी मकर लग्न के लोग हैं उन सबको शनि का जो नेगेटिव प्रभाव होता है उसको कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं कि आप रोज नहाइए, इसके अलावा रोज कपड़े बदलिए, समय से हर बार नए नए कपड़े पहनिए, परफ्यूम का इस्तेमाल रोज कीजिए, क्योंकि आपके लिए शुक्र योग कारक होता है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी। और आप शुक्र को जितना ऊंचा उठाएंगे, मजबूत करेंगे, उतना ही आपके लिए वो फायदेमंद होता है। और जैसा आप जानते हैं शुक्र लग्जरी का प्लैनेट है, तो आप जितना साफ रहेंगे, जितना स्टाइलिश रहेंगे, उतना ही आपके लिए पैसे का आवागमन होने का संभावना बढ़ता जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि मकर और कुंभ लग्न के लोग बहुत स्टाइलिश नहीं होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं और बहुत रेगुलर तरह के कपड़े पहनते हैं। तो वो ये ट्रिक मिस कर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को नीले काले कपड़े पहनना पसंद है, जो कि फिर से शनि की नेगेटिव ऊर्जा को डायल अप करता है। तो यहाँ पर काले नीले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए और इनको हमेशा अपने आसपास बहुत साफ सफाई मेंटेन करके रखनी चाहिए, जो ये लोग नहीं करते हैं। और इसी वजह से शनि का नेगेटिव प्रभाव उनके ऊपर और बढ़ता जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लग्न के लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अभी अगर हम लग्नेश की बात करते फरवरी के महीने में, तो लग्नेश अभी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो लग्न स्थान का स्वामी द्वितीय भाव में बैठना वैसे ही पैसे की आवक को दिखाता है। यहाँ पे जो अच्छी बात हो रही है कि पहले 12 दिनों तक दशमेश शुक्र भी शनि के साथ बैठ के युति कर रहे द्वितीय भाव में। तो दशमेश का द्वितीय भाव से जाना अपने आप में ही नौकरी एक नई आने की संभावना को जन्म देता है। तो 12 फरवरी तक अगर आपको कोई नौकरी मिलती है तो आप उसको उठा लीजिए, क्योंकि आपको पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा अगर नौकरी मिलती है, अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास तो। और ये आपको एक लेवल ऊपर लेके जाने का कार्य करेगा। यहाँ पे आपको कार्यस्थल पे भी प्रशंसा मिलेगी इस महीने में 12 फरवरी तक के समय में। और फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है आपके लिए कार्य क्षेत्र पे अच्छा समय देखने का। और इसके बाद शुक्र तृतीय भाव में मूव कर जाएंगे 14 फरवरी से लेकर आपके वो महीने के अंत तक तृतीय भाव में बैठे रहेंगे। तो आपके लिए ये समय एवरेज हो जाएगा बाद में, क्योंकि शुक्र गुरु के साथ के इंटरप्लैनेटरी वॉर में घुस जाएंगे। गुरु और शुक्र की आपस में नहीं बनती। शुक्र दैत्यों के गुरु थे और गुरु देवताओं के गुरु थे, और शुक्र के पास एक विद्या थी संजीवनी विद्या, जिनको गुरु के पास भी वो नहीं थी। तो उनके बीच में हमेशा एक लड़ाई चलती रहती थी कि दोनों में ज्यादा महान गुरु कौन है, इसलिए इनकी आपस में नहीं बनती। लेकिन दोनों को कनेक्ट करने वाला थ्रेड विद्या ही है। तो अगर आप कहीं भी विद्या ग्रहण के कार्य में लगते हैं इस समय में, खास करके 14 से 28 फरवरी के टाइम में, तो ये दोनों प्लैनेट्स मिलके आपको फेवर करेंगे, क्योंकि दोनों में ही एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो कि कॉमन कारक में आता है। केतु भी दशम भाव से भ्रमण करता रहेगा, और केतु का दशम भाव में बैठना यानी आपको आपके कार्यस्थल से वो विमुख करने का कार्य करता है। केतु का कार्य ये काट देना किसी भी चीज से। तो यहाँ पे अगर आप काले कुत्ते को खाना खिलाइए हर बुधवार को, तो काफी हद तक आपका केतु की जो एक खराब पोजीशन बन रही है उससे छुटकारा दिलाने में मदद करता है। शनि द्वितीय भाव में बैठ के आपके परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाने का काम करेगा अगले 2.5 सालों में। और जितने भी लोग केयरफुली इन्वेस्ट वगैरह करते हैं उनके लिए ये शनि 2.5 साल में धीरे धीरे बहुत अच्छा
पैसा बना के देगा आपको, तो उसके लिहाज से आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप स्पेक्यूलेशन में इंटरेस्टेड हैं तो भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी शुक्र है और वो तृतीय भाव में उच्च का हो जाएगा 14 से 28 फरवरी के बीच में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पंचमेश का तृतीय में जाना, यानी पंचम से 11वीं पोजीशन, और उसका पंचम भाव से भी त्रिएकादश योग कर रहा है। तो दोनों तरफ से ही पोजीशन बहुत अच्छी है। तो जितने भी लोग स्पेक्यूलेशन में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये महीना खास करके सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ बहुत अच्छा है। सूर्य आपके प्रथम भाव में बैठा रहेगा 12 फरवरी तक। सूर्य जब भी लग्न स्थान से जाता है तो व्यक्ति की ईगो बढ़ाने का काम करता है, व्यक्ति में अहम जाग जाता है, उसको लगता है कि वो कुछ है। तो ऐसे में व्यक्ति को ईगो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का स्थिति, जब सूर्य द्वितीय भाव में मूव कर जाएगा, तो कुछ खास अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके लिए सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन घर में झगड़ों का निर्माण करेगा। तो जब भी कभी सूर्य शनि कंबाइन करते हैं तो उस भाव के सिग्निफिकेशंस को डैमेज करते हैं। तो आपको परिवार वालों के साथ संभल के रहना पड़ेगा, उनके साथ ईगो इश्यूज में भिड़ने से आपको बहुत नुकसान हो जाएगा और परिवार में टेंशन का माहौल हो जाएगा। तो ये समय 13 फरवरी से 14 मार्च तक का पारिवारिक सुख की दृष्टि से कुछ खास अच्छा नहीं है। इनफैक्ट आप अगर अपना एटीट्यूड कंट्रोल करके रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जितने भी लोग इन दोनों ग्रहों से दिखाए जाने वाले सेक्टर्स में हैं, यानी वो लोग जो कि फैशन इंडस्ट्री में हैं, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में हैं, किसी भी तरह का मनोरंजन से जुड़े हुए हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, टेलीविजन इंडस्ट्री हो, उन लोगों को भी कार्यस्थल पे 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में काफी इश्यूज देखने को मिलेंगे। छठवें भाव का स्वामी भी आपके प्रथम भाव में बैठा है फरवरी में, बुध जो है, और आपके जो भी दुश्मन हैं वो इस महीने में काफी एक्टिव रहेंगे और आपको ओवर पावर करने का वो प्रयत्न करेंगे। और आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, खास करके 7 से 9 फरवरी के बीच में, क्योंकि वो भी छठवें भाव से ही देखी जाती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं तो ये फरवरी का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, खास करके 14 से 28 फरवरी का समय। मंगल पंचम भाव में बैठे रहेंगे फरवरी के महीने में भी। इसका मतलब है कि आपके बच्चे उद्दंड स्वभाव के हो जाएंगे, क्योंकि मंगल अग्रेशन भरता है। तो चाहे आप बच्चों की बात कर रहे हैं या आप एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी व्यक्ति काफी अग्रेसिवली चीजों को परसू करता है। तो यहाँ पे अगर आप बच्चों के ऊपर ज्यादा डिसिप्लिन लगाने का काम करेंगे, क्योंकि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं, डिसिप्लिन से चलना ही आपको पसंद है, तो यहाँ पे बच्चों पे लगाया हुआ डिसिप्लिन उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो अच्छी बात मैंने देखी है मकर लग्न के लोगों में कि इनके बच्चे हमेशा फाइनेंशियली वो अच्छी पोजीशन में पहुंचते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। तो क्योंकि एक तो शुक्र आपकी स्वयं की कुंडली में योग कारक ग्रह होता है जो कि लग्जरी का मालिक है, तो आप भी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंचते हैं। और दूसरा, आपके बच्चों के भी पंचम भाव में भी टॉरस साइन पड़ता है, वृषभ राशि, जो कि अपने आप में एक रिच राशि कहलाती है। तो काफी बार आप देखते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ आपकी इक्वेशन और अच्छी हो जाती है कंपैरिजन में उस समय के जब वो छोटे थे। और आपके बच्चे भी फाइनेंशियल पोजीशन में आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है मकर लग्न के लोगों के लिए। अभी महीने में कुछ ऐसे दिन हैं जब आपको सावधान रहना पड़ता है। तो ये दिन है 2 और 3 फरवरी, 7 और 8 फरवरी, और 16 और 17 फरवरी। इन 6 दिनों में आप सावधान रहिए। अगर आप कुल मिला के देखें तो ये काफ़ी अच्छा महीना है स्पेक्यूलेशन की दृष्टि से। और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी फर्स्ट हाफ बहुत फेवरेबल है, 12 फरवरी तक का समय। और इसके अलावा अगर आप कोई भी नया चीज़ सीखना चाहते हैं तो भी ये शुक्र गुरु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा 14 फरवरी के ऑनवर्ड्स, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा लर्निंग के लिए। तो ये आपकी समरी थी इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।